नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के हमारे इस न्यूज़ वीडियो में। दिन की सबसे बड़ी खबर आ रही है किसान आंदोलन से, जहां किसान आंदोलन की वजह से आम जनता का हाल बेहाल है। 2 दिन से पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाने वाले सभी रास्ते बंद हैं, जिसकी वजह से आम यात्रियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों के दिल्ली कूच से पंजाब और हिमाचल में आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चंडीगढ़ तो वो जैसे तैसे चले जाते हैं क्योंकि बस मिल जाती है, लेकिन सर्वाधिक समस्या पंजाब में घुसने में आ रही है। यही वजह है कि 2 दिन से पंजाब से कोई भी बस कश्मीरी गेट स्थित इंटर स्टेट बस टर्मिनल तक नहीं पहुंची है। ऐसे में पंजाब जाने वाले लोगों को तो खासी दिक्कत का सामना करना ही पड़ रहा है और हिमाचल की बसों का भी बुरा हाल है। ऐसे में बसों की संख्या कम होने की वजह से लोगों को घंटों का इंतजार करना पड़ रहा है। जाम तो है ही, इसके अलावा पुलिस द्वारा भी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए कई रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कई रास्तों पे पाबंदी लगा दी गई है। अब बढ़ते हैं दिन की अगली बड़ी खबर की तरफ। दिन की अगली बड़ी खबर हमारे देश के उच्च न्यायालय से आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड स्कीम को अवैध करार देते हुए उस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सूचना का अधिकार यानी आरटीआई का उल्लंघन है और वोटर्स को पार्टी की फंडिंग जानने का हक है। इससे मतदाता को अपना मताधिकार का प्रयोग करने में स्पष्टता प्रदान होती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को जानने का अधिकार है कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। कोर्ट ने माना कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना का अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(a) का उल्लंघन है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से काला धन रोकने का एक दूसरा तरीका है। अदालत ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की गोपनीयता आरटीआई के खिलाफ है। राजनीतिक दलों की फंडिंग के बारे में जानकारी होने से लोगों को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने में स्पष्टता मिलती है। The following are our conclusions. A. The electoral bond scheme, the proviso to section 29C(1) of the Representation of the People Act 1951, as amended by section 137 of the Finance Act 2017, section 182(3) of the Companies Act, as amended by section 154 of the Finance Act 2017, and section 13(a)(b), as amended by section 11 of the Finance Act 2017, are violative of Article 19(1)(a) and unconstitutional. And B, the deletion of the proviso to section 182(1) of the Companies Act, permitting unlimited corporate contributions to political parties, is arbitrary and violative of Article 14. We consequently issue the following directions. A, the issuing bank shall herewith stop the issuance of electoral bonds. B, State Bank of India shall submit details of the electoral bonds purchased since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. The details shall include the date of purchase of each electoral bond, the name of the purchaser of the bond, and the denomination of the electoral bond purchased. C, State Bank of India shall submit the details of political parties which have received contributions through electoral bonds since the interim order of this court dated 12 April 2019 till date to the Election Commission of India. SBI must disclose details of each electoral bond encashed by political parties, which shall include the date of encashment and the denomination of the electoral bond. D, SBI shall submit the above information to the ECI within 3 weeks from the date of this judgment, that is by 6 March 2024. E, the ECI shall publish the information shared by the SBI on its official website within 1 week of the receipt of the information, that is by 13 March 2024. And F, electoral bonds which are within the validity period of 15 days but which have not been encashed by political parties yet shall be returned by the political party to the purchaser depending on who is in possession of the bond to the issuing bank. The issuing bank, upon the return of the valid bond, shall refund the amount to the purchasers. दिन की आखिरी खबर की तरफ। दिन की आखिरी खबर है स्पोर्ट्स जगत से, जहां सरफराज खान ने डेब्यू मैच में अर्धशतक जमाकर अपने टेस्ट करियर की शानदार शुरुआत की है।
आपको बता दें, राजकोट टेस्ट में डेब्यू करने उतरे सरफराज खान ने 48 गेंदों में अर्धशतक जड़ा। सरफराज खान ने 7 चौकों और 1 छक्के की मदद से अपना अर्धशतक पूरा किया। आपको बता दें, जब सरफराज खान को डेब्यू कैप पहनाई जा रही थी तब उनके परिवार वाले जैसे उनकी बीवी और उनके पिताजी भी काफी भावुक हो गए थे उस क्षण को देखकर। राजकोट टेस्ट में पहले दिन कप्तान रोहित शर्मा ने भी इंग्लैंड के खिलाफ तूफानी शतक जमाया। यह शतक रोहित के करियर का 11वां शतक रहा। उन्होंने यह शतक 36 साल 291 दिन की उम्र में जड़ा है, यानी कि वह शतक जड़ने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान बन गए हैं। उन्होंने इस रिकॉर्ड में विजय हजारे को पछाड़ा है। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने राजकोट टेस्ट में तूफानी शतक जड़कर कई बड़े कीर्तिमान अपने नाम किए। हिटमैन ने 7 महीने के लंबे इंतजार के बाद अपना टेस्ट शतक जमाया। इसके अलावा रवींद्र जडेजा ने भी तीसरे टेस्ट में शानदार प्रदर्शन किया। तूफानी शतक जड़ने के बाद उन्होंने अपने टेस्ट करियर में 3000 रनों का आंकड़ा छुआ है। जडेजा कपिल देव और रविचंद्रन अश्विन के बाद 3000 रन और 250 टेस्ट विकेट लेने वाले तीसरे भारतीय क्रिकेटर बन गए हैं। जडेजा तीसरे स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर भी बने जिन्होंने यह कीर्तिमान हासिल किया है। यह था आज का हमारा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।